ڈاکٹر ظہیر فتح پوری مرحوم اور ابن انشا مرحوم نے ازراہ حوصلہ افزائی اس دور کو اردو مزاح کا عہد یوسفی کہا ہے۔ عہد یوسفی کا مطلب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا عہد جس میں ہر ایک کی قمیص کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے اور ہر ایک کی حسرت ہے کاش پیچھے سے پھٹا ہوتا ہے۔ اے دوست تجھ کو دامن یوسف کا واسطہ، آجا کبھی تو دست زلیخا لیے ہوئے۔ اب میں آپ کو اپنے مضامین اور تقریروں سے چند اقتباسات سنانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کچھ مطبوعہ ہیں، کچھ غیر مطبوعہ، کچھ سنے ہوئے، کچھ انسنے، کچھ سنی انسنی کر دینے کے لائق، کچھ ناقابل نشر و اشاعت مگر لائق سماعت، غیبت اور اسکینڈل کی طرح، جو اس سے آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، انہیں بھی فقیر کا تحفہ قند مقرر جان کر خندہ مقرر سے نوازیں۔ یہ 15 برس پہلے کی بات ہے، آتش اس وقت بھی جوان نہیں تھا۔ مجھے خواتین کی ایک شام افسانہ کی محفل کی صدارت کے لیے کہا گیا۔ میں نے مدعو کرنے والی خاتون سے اپنا وہی پیٹنٹ فقرہ دہرایا کہ بی بی میں تو گوشہ نشین بلکہ پردہ نشین آدمی ہوں، بولیں اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں۔ خواتین کی محفل ہے، اگر آپ کو بے پردگی کا اتنا ہی خیال ہے تو اینک اتار کر بیٹھ جائیے۔ اس خاتون کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینک اتارنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب اس کے شیشے میری اینک کی طرح آدھ انچ موٹے ہوں۔ اللہ بخشے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جب کوئی 80 کے پیٹے میں ہوں گے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک منہ چڑھا شاگرد ایک دن شام کو زندگی میں پہلی بار نئی اینک لگا کر آیا۔ صوفی صاحب قبلہ دیکھتے ہی بولے کہ برخوردار، اینک لگا کر تو تم بالکل الو نظر آتے ہو۔ شاگرد ہاتھ جوڑ کے اور گھٹنے چھو کے بولا کہ سر اینک نہ لگاؤں تو آپ الو نظر آتے ہیں۔ حضرات، ایک دفعہ کوئی 12 سال کے وقفے کے بعد میں پی آئی اے فلائٹ سے آیا اور کل شام بھی پی آئی اے فلائٹ سے آیا، تو ہر چیز میں نے تبدیلی دیکھی۔ یہاں صرف ایک چیز میں کوئی تبدیلی نہ پائی۔ پی آئی اے دوران پرواز فوائل یعنی پنے کی ٹرے میں جو بریانی نما پلاؤ اور پلاؤ نما بریانی کھلاتی ہے، اس کی نہ صرف ریسیپی اور بھبکا وہی ہے جو یادش بخیر 30-35 برس قبل تھا، بلکہ مرغی کی ایک ٹانگ بھی ابھی تک ٹرے میں اسی جگہ اسی ترچھے زاویے سے رکھی ہے جہاں ایئر مارشل نور خان دست خاص سے رکھ گئے تھے۔ ایئر ہوسٹس کے دوپٹے کے لٹکاؤ اور ٹکٹ کی قیمت کے سوا کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں پائی۔ صاحب، قیمتوں کا ذکر آیا اور آج کل بہت شکایت ہے انفلیشن کی، تو ایک تجویز میرے ذہن میں آئی۔ دنیا میں ابھی تک انفلیشن یعنی افراط زر کا علاج دریافت نہیں ہوا۔ تیسری دنیا کی حکومتیں
नोट छाप छाप कर बजट का खसारा पूरा करती हैं। नोट छापने और अफरात ज़र पर काबू पाने की एक ही प्रैक्टिकल सूरत है, वो ये कि गवर्नर स्टेट बैंक को कानूनन इसका पाबंद किया जाए कि वो हर नोट पर असली दस्तखत यानी अपने कलम और रोशनाई से दस्तखत करेगा। हजरात, ये उस ज़माने का किस्सा है जब हम बैंक में नए नए मुलाजिम हुए थे। हम रेवड़ में नए नए दाखिल हुए थे, चुनाचे हर एक सींग मारता था कि जिससे बात उसने हिदायत ज़रूर की। यूं तो सारे जहान की खिड़कियां मेरे ही आंगन में खुलती थी, लेकिन यासूबुल हसन गौरी, ये चीफ अकाउंटेंट का नाम था, लेकिन यासूबुल हसन गौरी का अंगूठा हमारे टेंटवे पर रहता था, जिनमें से रोज़ रोज़ के तानो तशनी से हमारा कलेजा छलनी हो गया था, बल्कि छलनी में छेद भी हो गए थे, जिनमें से अब तो मोटे मोटे ताने फिसल कर निकलने लगे थे। मिन जुमला दीगर इल्ज़ामात के हम पर एक इल्ज़ाम ये था कि हमारे दस्तखत गुस्ताखाना हद तक लंबे हैं। इतनी कलील तनख्वाह इतने बड़े दस्तखत की किफ़ालत नहीं कर सकती। यासूबुल हसन गौरी चीफ अकाउंटेंट को एंडरसन जो जनरल मैनेजर था दिन में कई बार तलब करता, कभी कुछ पूछता कभी कुछ। अंदर जाने से पहले यासूबुल हसन गौरी अपनी हथेली पर कॉपिंग पेंसिल से, कॉपिंग पेंसिल हजरात अब तो देखने में नहीं आती, वो पेंसिल ऐसी होती थी कि उससे कुछ आप लिख लें और उसको नमी से तर करें या थूक से चाट के, ज़बान से चाट के देखें तो वो हुरूफ रोशन हो जाते थे, वैसे नज़र नहीं आते थे। वो हथेली पर कॉपिंग पेंसिल से वो तमाम मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका आदाद व शुमार नोट कर लेते जिनके बारे में एंडरसन सवाल कर सकता था। जैसे ही वो सवाल करता, यासूबुल हसन गौरी मुंह फेर कर यदे बेदाग के मुतल्लिका हिस्से को ज़बान से चाट कर हुरूफ को रोशन करते और खटाक से सही आदाद व शुमार आने पाई समेत बता देते। एक दिन मैंने अर्ज़ किया कि आप कागज़ पर लिख कर क्यों नहीं ले जाते? इरशाद हुआ, आपको बैंक में आए जुमा 8 दिन हुए हैं, आप अंग्रेज़ों के मिजाज से वाकिफ़ नहीं। कागज़ पर नोट करके ले जाऊँ तो वो ये समझेगा कि मेरा हाफ़ज़ा जवाब दे चुका है, मैं खुदा न ख्वास्ता बूढ़ा हो गया हूँ। अभी तक तो वो विलायती उल्लू ये समझता है कि मुझे तमाम आदाद व शुमार ज़बानी याद है। इसके कुछ दिन बाद एंडरसन ने मुझे तलब किया और पूछा कि नारायणगंज ब्रांच के डूबे हुए कर्ज़ों की मजमूई रकम और तादाद क्या बनती है, सही सही बताओ। सही सही तो दरकिनार, हम तो गलत जवाब देने की अहलियत भी नहीं रखते थे। हमें शशोपंज में मुब्तला देखा तो कहने लगा, हरी अप, जल्दी से हथेली चाट के बताओ। ये उसी ज़माने का जिक्र है। जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो अदीब या इंटेलेक्चुअल होना बैंक के लिए बदतरीन डिस्क्वालिफिकेशन थी। बिज़नेस की दुनिया में इंटेलेक्चुअल को यूं भी दोगली मखलूक समझा जाता है। उसकी मिसाल बिलुमूम फ्लाइंग फ़िश यानी उड़न मछली से दी जाती है। उड़न मछली की मुसीबत ये है कि वो अगर समंदर में नीचे ज़्यादा उतर जाए तो बड़ी मछलियाँ उसे खा जाती हैं, और अगर हवा में ज़रा ऊंची उड़े तो चील कव्वे तिक्का बोटी कर देते हैं। ज़मीन पे उतरे तो बिल्ली कुत्ते भंबोड़ खाएं। बैंक के चीफ अकाउंटेंट यासूबुल हसन गौरी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप बैंक में इतनी सही उर्दू न बोला करें।
व्यापारी बिदक जाते हैं। आप अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। और उन्होंने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। मैंने उम्र अजीज़ के 39 साल इस पेशे की नज़र किए हैं। 5 मुख्तलिफ बैंकिंग इदारों का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। दीदनी और नादीदनी सब कुछ देखा भाला है। गुज़रा है एक ज़माना हमारी निगाह से। बाज़ लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं कि गुज़रा है एक ज़नाना हमारी निगाह से। लेकिन मैंने आज तक किसी शायर या अदीब को कैश डिपार्टमेंट में नहीं देखा। एक दफ़ा का जिक्र है, कराची में मुझे एक सेठ साहब का, जो बैंक के डायरेक्टर भी थे, फ़ोन आया कि मुझे यूसुफ़ी से बात करनी है। मैंने अर्ज़ किया खादिम बोल रहा है। फरमाया यूसुफ़ी को बुला दो। मैंने फिर कहा खादिम बोल रहा है। झुंझलाते हुए बोले बाबा एक बारी सुन लिया, मैं बहरा नहीं हूँ, क्या समझे, मेरे को खादिम नहीं चाहिए, यूसुफ़ी से बात करनी है, जुलेखा बाई से नहीं। वो दिन है और आज का दिन टेलीफोन के इस सिरे से फिर कभी खादिम नहीं बोला। कमोबेश 10 साल तक मैं सिर्फ मुश्ताक अहमद के आम और आमियाना से नाम से मज़ामीन लिखता रहा ताकि बैंक वाले मुझे पहचान न सकें। और जब ये भांडा फूटा तो मुझे डिसमिस करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि इंतज़ामिया की गफलत और डायरेक्टरों की बेखबरी के सबब मैं इतनी तरक्की पा चुका था कि खुद अच्छों की कलगी पे चोंच मार सकता था।